हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪੈਕਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੀਟੈਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂਗੀ ਪੀਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪੀਟੈਟ ਤੇ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਨ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਨ 1600 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ। ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਈ ਕੰਪਨੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ 'ਚ। ਤੇ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਕਿੰਸ। ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰ ਥੋਮਸ ਰੋਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਬੈਟਲ ਸੀਗੀ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਸਨ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ 1757 'ਚ। ਉਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ
एक कोने के उपर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के एक हिस्से उपर आपदा अधिकार स्थापित कर लिया तो उत्थे उन्हें हुकूमत करनी शुरू की। हौली हौली की हौली हौली वो वपार करती गई तो भारत के होरां दे जिहड़े थावां सीगियां उन्हां नूं भी की एक्वायर करती गई। ऐदा फिर की कंपनी ने भारत हुकूमत की लगभग 100 साल तक। कंपनी ने जिहड़ी अंग्रेज़ों द्वारा एक कंपनी आई सी भारत दे विच उन्हें लगभग 100 साल तक भारत के उपर राज किया ते अपने भारतीय लोगों का चाहे वह किसान वर्ग है चाहे व्यापारी वर्ग है किसी भी वर्ग का दब के उन्होंने शोषण किया। आर्थिक तौर पर, समाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर इन्ना दब के शोषण किया कि अपने भारतीय लोग उस कंपनी तो इन्ना तंग आ गए कि उन्होंने कंपनी के खिलाफ एक विद्रोह छेड़िया जिहड़ा आपां इतिहास च पढ़ते हैं 1857 रिवोल्ट जिहदी की है बड़े उहदे की है उस रिवोल्ट के पिछे बड़े इतिहासक कारण सी। पर जिहड़ा सब तो इमीडिएट रीजन बनया सी वो आपां सुनते हैं मंगल पांडे चरबी वाले कारतूस का प्रयोग करने तो मना करता सी मंगल पांडे ने। तो वह विद्रोह कंपनी के खिलाफ किया सी अपने भारतीय लोगों ने। तो उस की है कंपनी ने उस रिवोल्ट को दबाउण दे विच की है बड़ी मुश्किल आई पर की है कंपनी उस रिवोल्ट को दबाउण दे विच सफल हो पाई। पर कंपनी उस रिवोल्ट तो बाद ये जरूर पता लग गया कि जिहड़ी वो कंपनी भारत दे विच आई सी हुण वो भारत दे विच राज करन दे लायक है नहीं। तो कि कंपनी तो शासन खो के ब्रिटेन देश ने या ब्रिटिश क्राउन ने शासन आपदे अंडर ले लिया कि हुण कंपनी शासन नहीं करूगी भारत दे विच, असीं डायरैक्ट शासन करांगे भारत दे विच। तो भारत दे विच कंपनी रूल खत्म हो गया सन 1857 च ते रूल शुरू हो गया ब्रिटेन की गौरमेंट का डायरैक्ट तौर पर। जो ब्रिटिश गौरमेंट ने डायरैक्ट आपदे अंडर हुकूमत लै ली भारत की तो उन्होंने एक गल की जरूर समझ आ चुकी सी कि जेकर हुण असीं भारत दे विच शासन करना है तो सानू भारतीय लोगों नाल भी सहयोग करना पऊगा, उन्होंने भी बराबर की है नाल हिस्सेदारी देनी पऊगी, नाल उन्होंने कानून बनाउण वेले नाल की है उन्होंने आपदी कौंसल दे विच शामिल करना पवेगा। तो की होया हौली हौली अपने भारतीय लोगों की भी भागीदारी होने लगी अंग्रेज़ों के नाल। तो की अंग्रेज़ जिहड़े अपने भारतीय लोगों दी समस्यावां समझण च उन्होंने बड़ी दिक्कत महसूस आउंदी सी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्यों ना अपना भारतीय लोगों की एक संस्था बना के दईए, जेड़े भारतीय लोग अपने को समस्या लैके आते हैं वो समस्या आपकी संस्था नूं दसन ते वो संस्था फिर साडे नाल गल करे। तो कि एक इन्हां दी ऑर्गेनाइजेशन बना के दईए जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन की है वो भारतीय लोगों की काम करूगी। भारतीय लोग आपकी सारियां समस्यावां उस ऑर्गेनाइजेशन नूं दस्सिया करनगे ते वो ऑर्गेनाइजेशन साडे नाल गलबात करया करूगी। जेकर समस्यावां मनण योग हुई तो उन्हां समस्यावां नूं मान लिया जाऊगा। तो उहदे वास्ते अंग्रेज़ां ने की कीता, अंग्रेज़ां ने एक जिहड़ा भारत दे विच वायसराय सी उहदी ड्यूटी लगाई। वो वायसराय कौन सीगा? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन नूं कहा कि तू भारत दे विच जिहड़े अपने भारतीय लीडर है इन्हां दी एक संस्था बना के दे इन्हां नूं। तो लॉर्ड डफरिन ने की कीता इस काम वास्ते किहदी ड्यूटी लाई? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एक रिटायर ब्रिटिश रिटायर होया हुआ सी ब्रिटिश सेवा तो, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सीगा, ब्रिटिश की नौकरी तो रिटायरमेंट हो चुकिया सी ये परसन A.O. ह्यूम जिहड़ा कि अपने भारतीय लोगों प्रति बड़ी सहानुभूति रखता सी। इहने की कीता, इहदे भारतीय लीडरां नाल चंगे संबंध सी तो इहने भारतीय लीडरां नूं इकट्ठे करके उन्हां दी एक संस्था बना के दित्ती दैट इज़ कॉल्ड इंडियन नैशनल कांग्रेस, जिहड़ा कि अज आपां इस लैक्चर दे विच पढ़ना है। अपना टॉपिक ही की है इंडियन नैशनल कांग्रेस। तो उहदे बनन पिछे आ एक स्टोरी सीगी कि इहदी स्थापना किद्दां हुई। तो सब तो पहला आपां इंडियन नैशनल कांग्रेस बारे पढ़ांगे। तो स्टार्ट करन तो पहला की है सुन लो द्वार-वार कि जिहड़ा ये लैक्चर है C.Tet ते P.Tet के एग्जाम लिए बड़ा लाभदायक है जी, जिहड़ा अज आपां सैशन स्टार्ट किया है इंडियन नैशनल कांग्रेस का। तो आओ आपां शुरू करिए। गल आती है इंडियन नैशनल कांग्रेस की स्थापना कदों हुई? 28 दसंबर 1885 दे विच एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जिहदा नाम सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है जी, ये कित्थों बिलोंग करता सी?
स्कॉटलैंड तो बिलोंग करता सी ये परसन। इन्हें अपने भारतीय लीडरां की एक संस्था बना के दी इंडियन नैशनल कांग्रेस 28 दसंबर 1885 च। ठीक है जी। जे आपां गल करिए जदों इसकी स्थापना हुई है उदों इसका नाम सिर्फ कांग्रेस सीगा। की शब्द आपां इस्तेमाल करते सी? कांग्रेस। ਇਹਦੇ नाम के अगे जिहड़ा इंडियन नैशनल शब्द लगे है, ये इंडियन नैशनल शब्द का सुझाव अपने एक भारतीय नेता ने दिता सी। उन्हां दा नाम सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपने सुझाव दिता कि आपां संस्था का नाम कला कांग्रेस नहीं रखना बल्कि की नाम रखांगे? इंडियन नैशनल कांग्रेस। ठीक है जी। वैसे कांग्रेस का मतलब की हुंदा है? ग्रुप ऑफ पीपल। कांग्रेस का मीनिंग हुंदा है कुछ की है लोगों का ग्रुप। तो कांग्रेस की है यूएसए की जी पार्लीमेंट है उसका नाम भी की है? कांग्रेस है। तो कांग्रेस की स्थापना हो चुकी सी A.O. ह्यूम द्वारा 28 दसंबर 1885 च। जिस टाइम इसकी स्थापना हुई है भारत का वायसराय कौन सी? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय सी जिस टाइम कांग्रेस बनी। हुण कांग्रेस बना दी गई। हुण कांग्रेस जो इन्हें संस्था बनाती है बनाई क्यों गई सी? अंग्रेज़ों ने आपदे भले लिए बनाई सी ताकि भारतीय लोगों दी समस्यावां जिहड़ियां वो ये संस्था सुने तो ये संस्था फिर सानू दसे। ये तो उन्होंने आपदे फायदे लिए बनाई सी पर उन्होंने की पता सी अगे जाके बहुत वड्डी एक पार्टी बन जूगी जिहड़ा देश नूं आज़ाद कराउण च बड़ा अहम रोल प्ले करूगी। तो वायसराय लॉर्ड डफरिन ने ड्यूटी लगाई A.O. ह्यूम की तो उन्हें स्थापना की कांग्रेस की। जो स्थापना हुई तो स्थापना तो बाद यदा पहला सैशन कित्थे कराया गया? बॉम्बे दे विच इहदी पहली बैठक हुई। किहड़े कॉलेज च? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इत्थे बॉम्बे दे विच इहदा पहला सैशन होया इंडियन नैशनल कांग्रेस का। पर इसका सैशन पहला होना कित्थे सी? कांग्रेस की पहली बैठक डिसाइड कित्थे कीती गई सी? पुणे दे विच, महाराष्ट्र दे पुणे दे विच इहदा पहला सैशन होना सी। पर उत्थे प्लैग की हुंदी है? एक बीमारी हुंदी है, एक महामारी है जिन्हों आपां ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। उत्थे प्लैग की महामारी फैली हुई सी। उस महामारी के फैलन करके उत्थे की है बैठक हो नहीं सकी। इसे करके पहला सैशन होया बॉम्बे दे विच गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कांग्रेस का पहला सैशन होया 1885 जिस टाइम उसकी स्थापना हुई। तो उहदे विच किन्ने मैंबर पहुंचे? उत्थे 72 मैंबरां ने हिस्सा लिया कांग्रेस के पहले सैशन च। ते उस सैशन की जिहड़ी अध्यक्षता है उस सैशन का पहला प्रेजिडेंट कौन बनया? उमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन आ जाए इंडियन नैशनल कांग्रेस का पहला प्रेजिडेंट कौन बने? उमेश चंद्र बनर्जी। कित्थे होया सैशन? बॉम्बे च गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। किन्ने मैंबरां ने हिस्सा लिता? 72 मैंबरां ने। ते स्थापना किने कीती? A.O. ह्यूम ने जिहड़ा कि स्कॉटलैंड का सी। कदों हुई? 1885 च। ते उस टाइम भारत का वायसराय कौन सी? लॉर्ड डफरिन। तो की है उमेश चंद्र बनर्जी पहले प्रेजिडेंट बने इंडियन नैशनल कांग्रेस के। ते पहला सैक्रटरी कौन बने? जिन्हों ने स्थापना की उन्होंने सैक्रटरी बनाया गया A.O. ह्यूम नूं। ते इन्हां नूं की कहा जाता है? कांग्रेस का पिता, कांग्रेस का जनक कहा जाता है किनू? A.O. ह्यूम नूं। तो गल समझ आ गई स्टूडेंट्स। तो ये सीगा अपना की है भी इंडियन नैशनल कांग्रेस की स्थापना किवें हुई, कित्थे हुई, कदों हुई, तो पहले प्रेजिडेंट कौन सीगे। इन्ना कुछ आपां देखिया हुण तक कि इसकी स्थापना हुई किवें ते किन्ना किन्ना ने स्थापना की। तो इस चीज़ नूं 1 मिनट देखो फिर आपां अगे डिस्कस करते हैं। तो हुण आपां अगे देखांगे कि इस इंडियन नैशनल कांग्रेस दे हर साल एनुअल सैशन हुंदे सी अलग अलग थां ते हर सैशन की जिहड़ी प्रेजिडेंट है वह हर बार अलग बंदा बनता सी। ते आपां देखना है किहड़े किहड़े इंपॉर्टेंट सैशन होए ते उहदे विच किहड़े किहड़े चीज़ां डिस्कस कीतियां गईयां। वो अपने एग्जाम च अक्सर पूछा जाता है कि फलाने सैशन च कौन प्रेजिडेंट रहा सी, महात्मा गांधी कांग्रेस के किहड़े सैशन च प्रेजिडेंट बने सी। वो आपां अज सारे सैशन देखांगे। ठीक है जी, उन्होंने डिस्कस करांगे। तो इहनूं नोट करो फिर आपां स्टार्ट करिए जी। ता सीगा अपना इंडियन नैशनल कांग्रेस बारे। ठीक है जी।
तो स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, ठीक है जी। तो रीसेंटली एग्जामां च क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांग्रेस का पहला सैशन किहड़े कॉलेज होया? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, 72 मैंबर पहुंचे सी, बंबे होया सी सैशन। तो सैशन की जी प्रेजिडेंटशिप है, सैशन को संबोधित कौन कर रहा सी? उमेश चंद्र बनर्जी। तो फाउंडर किने स्थापना की? AO ह्यूम ने, जिहड़ा कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सी, ठीक है जी। ये अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई इंडियन नैशनल कांग्रेस, ठीक है जी। तो कदों स्थापना हुई? सन 1885 च। ते भारत का वायसराय सी लॉर्ड डफरिन, ठीक है। आओ आप देखिए अगे कांग्रेस के सैशनों बारे जी। तो आप अज कुछ सैशन अज डिस्कस करांगे, तो कुछ सैशनों को आप की है कल डिस्कस किया जाऊगा। तो देखते हैं आप की है सैशन कित्थे होया, 4 चीज़ां देखांगे। सैशन कदों होया, कित्थे होया, प्रेजिडेंट कौन सी, ते केड़े-केड़े मुद्दे डिस्कस किए गए उस सैशन च, ठीक है जी। तो आप की देखना है, इंपॉर्टेंट सैशन ऑफ INC। लिखो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट सैशंस ऑफ INC, ठीक है जी, INC, ठीक है। तो की देखांगे आप इत्थे? आप देखांगे ईयर, इत्थे देखांगे प्रेजिडेंट, इत्थे देखांगे प्लेस, ते इत्थे आप देखांगे डिस्क्रिप्शन। की देखांगे जी? डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सब तो पहला कांग्रेस का पहला सैशन होया 1885 च, पता ही आप हुण पढ़ा चुके हैं। प्रेजिडेंट कौन है? उमेश चंद्र बनर्जी। ये बने कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, पहले प्रेजिडेंट, ठीक है जी। होया कित्थे सैशन? बॉम्बे च। बॉम्बे च किहड़ी थां? हुणे आपां पढ़िया गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो किन्ने मैंबरां ने पार्टिसिपेट किया? 72 मैंबर। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है एग्जाम, टैट के एग्जाम च अक्सर पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले सैशन च किन्ने मैंबर पहुंचे सीगे? 72 मैंबर, ठीक है जी। उदों बाद आप देखिए सैकेंड सैशन। सैकेंड सैशन होया कांग्रेस का 1886 दे विच, कांग्रेस का सैकेंड सैशन होया। तो प्रेजिडेंट कौन सी? दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी ये कांग्रेस के प्रेजिडेंट रहे। तो कांग्रेस का सैशन होया कित्थे? दूसरा कलकत्ता च। कित्थे होया? कलकत्ता च। ते कितने मैंबर पहुंचे? 436 मैंबरस, ठीक है जी। जे आप गल करिए, आप सैशनस बारे पढ़ रहे हैं, कांग्रेस दे आज़ादी तो पहला की गल करिए, कांग्रेस दे सब तो ज़्यादा सैशन होए है कित्थे? कलकत्ता च। मैक्सिमम सैशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन कलकत्ता। कांग्रेस के सब तो ज़्यादा सैशन होए कित्थे है? कलकत्ता दे विच, ठीक है जी। आप गल करिए और आप पढ़ांगे अगे दादा भाई नरोजी बारे। दादा भाई नरोजी 3 बार प्रेजिडेंट बननगे क्या दे? इंडियन नैशनल कांग्रेस दे। पहला बने 1886 च, पढ़ लिया। अगले बननगे 1893 च, फिर बननगे 1906 दे विच। तो दादा भाई नरोजी 3 बार कांग्रेस की की करनगे? अध्यक्षता करनगे, प्रेजिडेंटशिप सांभणगे 3 बार, ठीक है जी। दादा भाई नरोजी ये अपने पहले भारती सी जिहड़े ब्रिटेन की पार्लीमेंट च MP चुने गए सी। ब्रिटेन की जिहड़ी पार्लीमेंट है, ब्रिटेन की पार्लीमेंट च MP चुने गए सी किहड़ी पार्टी वालों? लिबरल, लिबरल पार्टी वालों चुने गए सी ये एज अ MP। क्वेश्चन आवे पहला भारती जिहड़ा ब्रिटेन की पार्लीमेंट दे विच मैंबर चुनिया गया सी, दादा भाई नरोजी। तो यह की है? काफ़ी ओल्ड सी। इन्हां नूं कहा जाता है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्हां ने ब्रिटेन दे विच काफ़ी वक्त गुजारिया सी।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਝਾਅ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਈਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ? 436। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ। 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ 86, 93 ਤੇ 1906 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਭਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ MP ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਕੌਣ? ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ। ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ, ਚਲੋ। ਥਰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 1887 'ਚ। ਥਰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ? 1887 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਾਰਸੀ। ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ 1886 'ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਸੀ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ। ਅੱਗੇ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ 87 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਕੌਣ? ਬਦਰੁਦੀਨ ਤैयब जी। कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी बने नैक्सट प्रेजिडेंट। केड़ा सैशन कित्थे होया? मद्रास च। कित्थे होया सैशन? मद्रास च। तो कांग्रेस दे सब तो वध सैशन होया कलकत्ता च, दूसरे नंबर ते सब तो वध होया मद्रास च। ये की बनदा है? ये सीगे फस्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट, फस्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट। पहले मुसलमान प्रेजिडेंट कौन बनया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन आवे फस्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी फस्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट बने। कित्थे होया सैशन? 87 च मद्रास च होया। ठीक है जी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला आया फोर्थ सैशन। ए सैशन प्रेजिडेंट सीगे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। सैशन होया इलाहाबाद। सैशन कित्थे होया? इलाहाबाद। इलाहाबाद की गल करिए, अज इलाहाबाद का प्रेजेंट नेम की है? इलाहाबाद का अज प्रेजेंट नेम की है जी? इलाहाबाद यूपी च पैंदा है। ਇਹਦਾ ਅੱਜ वर्तमान नाम है प्रयागराज। ਇੱਥੇ ही की है ਜਿਹੜੀ अपनी दो नदियां गंगा एंड यमुना, ये मिलदियां कित्थे है? इलाहाबाद च आके, इलाहाबाद। ठीक है जी। तो जॉर्ज यूल इन्हां नूं कहा जाता है फस्ट, लिखो जी, जॉर्ज यूल फस्ट ब्रिटिश प्रेजिडेंट, पहला अंग्रेजी, पहला अंग्रेज जिहड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेजिडेंट बनया, जॉर्ज यूल। ठीक है जी, जॉर्ज यूल, ये देखांगे जी। तो पहला सैशन 85 च उमेश चंद्र बनर्जी बॉम्बे, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी, चौथा जॉर्ज यूल। पहले ब्रिटिश प्रेजिडेंट बने। सैशन होया इलाहाबाद, जिसका असली नाम है अज वर्तमान प्रयागराज। इतने गंगा तो यमुना आके मिलती हैं। ठीक है जी। अगला देखिए आप नैक्सट सैशन 1889 ਦੇ ਵਿੱਚ सैशन होया की सैशन, कौन बने प्रेजिडेंट? अगे भी अंग्रेज, विलियम वैडरबर्न। विलियम वैडरबर्न बने अगले प्रेजिडेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दे। ते सैशन होया कित्थे दोबारे? बॉम्बे। कित्थे होया जी सैशन दोबारे? बॉम्बे दे विच। पहला बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर बॉम्बे। ठीक है जी। कौन? विलियम वैडरबर्न।
इस ते की क्वेश्चन बनता है? देखो जेडे उपरले 4 सैशन होए 85 86 87 88 इस सैशना दे विच औरतां शामिल नहीं सी। क्वेश्चन आंदा है कांग्रेस दे किहड़े सैशन से सब तो पहला वूमेंस ने पार्टिसिपेट किया? तो वो कित्थों होया? सैशन 1899 विलियम बैडरबन बॉम्बे। इहदी की खासियत सी? फर्स्ट टाइम वूमेन पार्टिसिपेट, पहली बार औरतां शामिल हुईयां इस टाइम। फर्स्ट टाइम वूमेन पार्टिसिपेट इस सैशन, फर्स्ट टाइम वूमेन पार्टिसिपेट, ठीक है जी, विलियम बैडरबन। तो की है जे अजे पहला ब्रिटिश प्रेजिडेंट, पहला अंग्रेज जिहड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेजिडेंट बनया जॉर्ज यूल। जे अजे वो किहड़ा अंग्रेज जिहड़ा सब तो वध बार प्रेजिडेंट बनया? विलियम बैडरबन। ये लगभग 2 बार बनूगा जी। जे अजे वो किहड़ा अंग्रेज है जिहड़ा सब तो ज़्यादा बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रेजिडेंट बनया? जॉर्ज विलियम बैडरबन। पर सब तो पहला कौन बनया? फर्स्ट ब्रिटिश प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नैशनल कांग्रेस तो जॉर्ज यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अज का सैशन आप इत्थे करते हैं। अगे आप अगली वीडियो के विच अगे सैशन कंटिन्यू करांगे। आप 5 सैशनस बारे पढ़े अज। तो की है ये जिहड़ा सैशन रहूगा ये सी-टेट ते पी-टेट के एग्जाम लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जामां दे विच कांग्रेस के सैशन तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि पहला सैशन कित्थे होया या पहले सैशन की अध्यक्षता किने कीती, की खास गल्लां होईयां सैशन दे विच। तो बाकी दे सैशन आप कल डिस्कस करांगे। तो ये अपना सीगा इंडियन नैशनल कांग्रेस बारे टॉपिक। तो अगे आप अगली वीडियो कंटिन्यू करांगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके।